Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 9. Today we are going to start our first lecture, that is on the physics. So today our first lecture. Our first chapter is introduction. Our first chapter is introduction to physics. What is physics? Allah has created this universe billion of years ago with a single word be, and the whole world, whole universe come into being. Allah has made several laws, principles to sustain the functionality of this world, this universe. Now from that day and up to today, or even in the future, all of the things that are present in the universe, that are present in this world, following the principles, following the laws to sustain their functionality. These laws, these principles are known as the laws of nature, and physics is a that subject in which we learn these laws, these principles. Apparently these are the hidden from us. Human does not see these things, but everything has some laws or functions, and that thing work accordingly. For example, we have a solar system. We are living in a solar system, and we are living only one planet, that is the Earth, but there are other planets beyond the Earth. There are a Mars, there is a Mercury, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These are moving along their path, along their orbit. No one planet hits other planet. No two planets come in contact with each other. No other two planets destroyed with each other. Why? Because of these are moving along their own path, along their own orbit. These are following the rules. These are following the principles. And these principles we are going to study in this subject, that is the physics. There are so many questions that comes in our mind, that arises in our mind. For example, how lightning flashes in the cloud, how rainfall occurs, how day and night changes, how season comes, how water occur in 3 different states of matter, what is the nature of the heat, how it is produced, and there are a lot of other questions which come in our mind. So physics always helps us to answer these questions. The word physics actually comes from the Greek word that is physikos. Physikos meaning natural. Physics is the branch of science which deals with the interaction of matter and energy. फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम मैटर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इनके ताल्लुक़ के बारे में पढ़ते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? फ़िज़िक्स कहते हैं. फ़िज़िक्स ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम मैटर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उनके ताल्लुक़ के बारे में पढ़ते हैं. फ़िज़िक्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस. फ़िज़िक्स की अलग से ख़ुद ब्रांचेस हैं. फ़िज़िक्स के ख़ुद से अलग सब्जेक्ट हैं जिनको स्टडी किया जाता है, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, एटमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, बायोफ़िज़िक्स, एस्ट्रोफ़िज़िक्स. So these are the disciplines that comes under the umbrella of the physics. मैकेनिक्स ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें हम चीज़ों के मोशन के बारे में पढ़ते हैं. चीज़ों के मोशन के बारे में पढ़ते हैं.
व्हाट इज़ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। देयर इज़ अ लेक्चर ऑन डैट, इस पे एक अलग लेक्चर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स में आप ये याद रखें कि हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ मोशन पे फोर्स एक्ट करती है और कुछ पर नहीं एक्ट करती, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ़्लो होने के बारे में पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी में किस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करती है तो करंट पैदा होता है, बिजली पैदा होती है। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल लाज एंड मेथड दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हम वो लाज और प्रिंसिपल देखते हैं जब हम रिलेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, जब हम उनके रिलेशन को पढ़ रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में किस तरह रिलेटेड है, उसकी उनके प्रिंसिपल्स, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनके लाज को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। जब भी हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, उसके मटेरियल के बारे में, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स, इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम। एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एटम क्या है? दुनिया की हर चीज़ मैटर है और मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एटम क्या होते हैं? छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं। और एटम की जब हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? वी आर स्टडिंग एटॉमिक फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स, दिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर एटम्स। एटम में क्या मौजूद होता है? एटम में मौजूद होता है न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को कहते हैं हम न्यूक्लियस। जब भी हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो वो स्टडी किया जाता है न्यूक्लियर फिज़िक्स में। वो किस में स्टडी किया जाता है? वो न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी किया जाता है। प्लाज्मा फिज़िक्स, इट इज़ कंसर्न विद द हाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम्स फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ द बेयर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई विद इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इस ब्रांच के अंदर हम हाईली आयोनाइज्ड एटम्स के बारे में पढ़ते हैं जब वो मिक्सचर बना रहे होते हैं। बायोफिज़िक्स, इट इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड एंड एक्सप्लेनेशन टू द बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं फिज़िकल मेथड, जो बायो एंड फिज़िकल के रिलेशन में जो फिज़िकल मेथड आ जाते हैं उनको हम स्टडी करते हैं बायोफिज़िक्स में। बायो मीन्स लाइफ, लाइफ और फिज़िक्स, जिस तरह बायो एंड जब हम फिज़िक्स को कंबाइन करते हैं तो उनको हम स्टडी करते हैं बायोफिज़िक्स में। फिर वहाँ पे डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आ जाती हैं स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कंपोजिशन के बारे में। तो ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं बायोफिज़िक्स में। एस्ट्रोफिज़िक्स, इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिज़िक्स ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। जब हम बड़ी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स, बड़े बड़े सैटेलाइट्स, उनको हम कहाँ स्टडी करते हैं? उनको हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर। आज जो हमने स्टडी किए ब्रांचेस, उसके अलावा भी काफ़ी ब्रांचेस हैं फिज़िक्स की, जैसे टेम्परेचर फिज़िक्स, पार्टिकल फ़िज़िक्स, ऑप्टिक फ़िज़िक्स। इनको हायर लेवल पे स्टडी किया जाता है, लेकिन फॉर क्लास 9th वी आर रिलेटेड टू दीज ब्रांचेस। This is all about today's lecture. Inshallah, in the next class, we will be study importance of physics in our daily life and scientific method. So take care, class 9, and inshallah we will meet in next class. Allah Hafiz.